Hello students, this is Navdeep Kaur from Raikot Public School, Raikot. We are discussing about plus one's biology and today we will start our next chapter, that is chapter number 14, respiration in plants. Firstly, we will discuss what is respiration. Respiration is the process to inhale oxygen and exhale carbon dioxide. In plants it is also same. Plants inhale oxygen and exhale carbon dioxide in respiration. They take carbon dioxide in photosynthesis. So don't misunderstand between respiration and photosynthesis, because in respiration plants follow same process as in human beings or animals. They take oxygen and they exhale or release carbon dioxide in respiration. So firstly we will discuss cellular respiration. What is cellular respiration? It is a mechanism of breakdown or oxidation of food material within the cell to release energy and trapping of this energy for the synthesis of ATP. Cellular means inside the cell. ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਰਜੇ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫੂਡ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਦੀ ਔਰ ਉਸ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨਿੰਗ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ। ਫੂਡ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਦੀ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ એનર્ਜੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵਾਲੀ એનર્ਜੀ ਜੋ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਰਜੇ ਉਹ એનર્ਜੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫॉर ਦਾ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ATP। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। The energy is released slowly in a stepwise series of reaction catalyzed by enzymes। ਇੱਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਦੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈਗੀ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਐਨਰਜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੰਬਰ ਆਫ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ 1 by 1 ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ, ਜਿਵੇਂ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤੋਂ ਸਿੰਪਲਰ, ਫਿਰ ਸਿੰਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਸਿੰਪਲੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈਗਾ ਰਚੇ ਉਹ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਆਫ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕਡਾਊਨਿੰਗ ਨਾਲ ਐਨਰਜੀ ਆ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਐਨਜ਼ਾਈਮਸ ਦੇ ਥਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਚੇ। ਸੱਚ ਸਟੈਪ ਵਾਈਜ਼ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਸਰਵਸ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਪਰਪਸਿਸ। First, it facilitates the utilization of relatively higher proportion of the energy in ATP synthesis। Facilitate the utilization means रचे हुण जदों step by step जो हैगा आ ब्रेकडाउनिंग होंदी है कंपोनेंट्स की, फूड कंपोनेंट्स की, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ थोड़ी थोड़ी एनर्जी जो रिलीज़ हो रही है वो थोड़ी थोड़ी एनर्जी ATP जो हैगा सैल आ सैल एबजॉर्ब करी जाता। ATP मॉलीक्यूल्स आ ਜਿਹੜੇ सीरीज़ ਦੇ ਵਿੱਚ फॉर्म हो रहा 1 by 1। It activates enzymes of different steps may be enhanced or inhibited by specific compounds, and this provides a means of controlling the rate of pathways and release of energy according to demand of the cell। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜੀ enzymes ਆ ਜਿਹੜੇ enzymes activate ਹੁੰਦੇ ਆ डिफरेंट स्टैप्स के एंजाइम्स 1 by 1 एक्टिव होंगे एक्टिवेटेड होने सैल्स के कुछ कंपोनेंट्स कुछ फैक्टर्स प्रेजेंट होंगे जो एंजाइम्स नू एक्टिवेट करते हैं स्टैप आफ्टर स्टैप। मीनस जो उन्होंने कोई सबस्ट्रेट मिलेगा एंजाइम्स नू उस टाइम पर सबस्ट्रेट एंजाइम आ जो सबस्ट्रेट के उपर एक्ट करके उन्होंने प्रोडक्ट के कन्वर्ट करते हैं। उस तो पहला अगर जिन्ना टाइम सबस्ट्रेट प्रेजेंट नहीं है एंजाइम्स आ जो फॉर्म नहीं होंगे, वो फॉर्म उस टाइम पर होने जो सबस्ट्रेट फॉर्म हो गया। तो एनर्जी भी है ये एनर्जी भी सिर्फ उन्नी की निकलती है रचे उन्नी की रिलीज़ होंगी है जिन्नी कि सैल की डिमांड होंगी है कि इन्नी एनर्जी प्रोड्यूस होनी चाहिए है, इन्ने ATP मॉलीक्यूल्स आ जो सिंथेसाइज होने चाहिए एक टाइम पर। द सेम पाथवे मे बी यूटिलाइज्ड फॉर फॉर्मिंग इंटरमीडिएट्स यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ अदर बायोमॉलीक्यूल्स ऑफ द सैल। सेम पाथवे है जोड़ा रचे जिद इंटरमीडिएट्स फॉर्म होने जड़ियाँ स्टैप बाय स्टैप रिएक्शनस होंगे उन्होंने कुछ इंटरमीडिएट्स फॉर्म होंगे वो इंटरमीडिएट्स होर बहुत सारिया मैटाबॉलिक पाथवेज आ जोड़े उन्होंने भी यूज़ होंगे। ग्लूकोज इज़ द मोस्ट फेवर्ड रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। मोस्ट फेवर्ड रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट मीनस ग्लूकोज की कन्वर्जन होंगी है रजे इंटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, तो वो रिलीज़ कन्वर्जन के नाल लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी है जी रिलीज़ होंगी है। ये प्रोसैस आ गया है रेस्पिरेशन रिएक्शन आ गई है रजे इन प्लांट्स। ग्लूकोज के नाल ऑक्सीजन आ जी वो मिक्स होंगी है, ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन होकर ग्लूकोज कार्बन डाइऑक्साइड तो वाटर के चेंज हो जाता। फोटोसिंथेसिस के की सी कार्बन डाइऑक्साइड तो वाटर आ जोड़े वो
ਐਡ ਹੋ ਕੇ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਫਾਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਇਸ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਗਲੂਕੋਜ਼ ਤੋਂ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਤੇ ਵਾਟਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਫਾਰਮ ਹੋ ਰਹੇ, ਸਿੰਪਲੈਸਟ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਮ ਆ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਫਾਰਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਲਾਂਟ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ, ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜੇ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਗੈਸਿਸ ਦੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੇ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਔਰਗਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਟੋਮੈਟਾ, ਪੋਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲੀਵਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਲੋਅਰ ਸਰਫੇਸ ਐਂਡ ਹਾਇਰ ਸਰਫੇਸ, ਬੋਥ ਸਰਫੇਸਿਸ ਤੇ ਜੋ ਪੋਰਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਗੈਸਿਸ ਦੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਰੂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈਗਾ ਰਚੇ ਉੱਥੇ ਲੈਂਟੀਸੈਲਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੋ ਗੈਸ਼ੀਅਸ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੇ ਲਈ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਹੁੰਦੇ। ਫੋਲੋਇੰਗ ਆਰ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨਸ ਵਾਈ ਪਲਾਂਟਸ ਕੈਨ ਗੈਟ ਅਲੋਂਗ without respiratory organs. Every part of the plant takes care of its own gaseous exchange needs and there is very little transport of gases. ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਰਜੇ, ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਔਰਗਨਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਆ ਇੱਕ ਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਹਿਊਮਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਨੀਮਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਸਟ੍ਰਿਲਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਆ, ਨੋਸਟ੍ਰਿਲਸ ਪੈਸੇਜ ਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਬਟ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਰਚੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਟੈਮ ਹੈ, ਸਟੈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਟਸ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ, ਆਪਣੀ ਨੀਡ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਗੈਸਿਸ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਬਜ਼ੋਰਬ ਕਰਦੀਆਂ। ਲੈਂਟੀਸੈਲਸ ਆ ਉਹ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ ਸਟੈਮ ਦੀ ਰੈਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਲੀਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਮੈਟਾਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਆ ਜੋ ਗੈਸ਼ੀਅਸ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ। टाइप्स है रेस्पिरेशन दियाँ, टू टाइप्स एरोबिक एंड एनारोबिक। एरोबिक रेस्पिरेशन मीनस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एनारोबिक मीनस इन द एबसेंस ऑफ ऑक्सीजन। एरोबिक रेस्पिरेशन दे विच ज़्यादा एनर्जी है जिहड़ी वो यील्ड होंदी है बच्चे, क्यों होंदी है क्योंकि ये विच प्रॉपर ऑक्सीडेशन होंदी है, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होंदा जो जिवें ग्लूकोज आ, ग्लूकोज जिन्ने मॉलीक्यूल्स होणगे वो सारे के सारे कार्बन डाइऑक्साइड ते वाटर दे विच डिसोसीएट हो जाएंगे कंप्लीटली, तो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो रिलीज़ होएगी। बट एनारोबिक दे विच जिहड़ा कंपोनेंट आ वो प्रॉपरली डिसोसीएट नहीं हुंदा कंप्लीटली। मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट्स विद ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। In aerobic respiration, glycolysis is followed by citric acid cycle and then electron transport system. Both occurs in mitochondria. In anaerobic, glycolysis is formed by ethyl alcohol or organic acid that occur in cytoplasm. Aerobic respiration ਦੇ ਵਿੱਚ citric acid cycle ਤੇ electron transport system ਦੋਨੋਂ ਇਹਦੇ ਅਗਲੇ ਸਟੈਪ ਨੇ ਗਲਾਈਕੋਲਿਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ एनारोबिक रेस्पिरेशन ਦੇ ਵਿੱਚ सिर्फ फर्मेंटेशन होंदी है और एनारोबिक रेस्पिरेशन फर्मेंटेशन बोलते रहे जो आप वो फरदर जो हैगा आ फॉलो करता है, सॉरी वो जड़ा फर्मेंटेशन होंदी है वो डायरैक्टली साइटोप्लाज्म ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ है, तो एरोबिक रेस्पिरेशन ਦੇ ਜਿਹੜੇ फर्दर स्टैप्स ने ਹੁੰਦੇ ਆ माइटोकॉन्ड्रिया ਦੇ ਵਿੱਚ। सो वी विल स्टार्ट ग्लाइकोलिसिस फर्स्ट। It occurs the scheme of reactions given by Embed, Meyerhoff and Parnas, hence it is called EMP pathway also, from the first letter of the name of the scientist, EMP. It occurs in cytoplasm of the cells. In this process, glucose is partially oxidized or converted into two molecules of pyruvic acid. This is the schematic representation of glycolysis. This is glucose and end product is pyruvic acid. Firstly, on glucose hexokinase enzyme acts and ATP molecule is dissociated into ADP. Glucose converted into glucose 6-phosphate. Hexokinase add one phosphate molecule in the glucose and that phosphate molecule comes from ATP when it is oxidized into adenosine diphosphate from triphosphate. Then second enzyme is isomerase. On glucose 6-phosphate isomerase acts and it converted glucose into its isomer, that is fructose 6-phosphate. The molecular formula of glucose and fructose is exactly same बच्चे, that's why we call these isomer of each other. Next, phosphofructokinase enzyme acts on the fructose 6-phosphate and it
it further add one more phosphate to this molecule, that is fructose 1,6 bisphosphate। 1,6 रजे पोजीशन दिती है कि फस्ट ते 6th जी कार्बन आ उपर फॉस्फेट मॉलीक्यूल्स आ जोड़े अटैच ने। इत्थे भी डिसोसीएशन होंदी है एक ATP एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट दी इंटू डाईफॉस्फेट, वो फॉस्फेट आ जी रिलीज़ हुई है एक वो ऐड हो जाती है इंटू फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। फरदर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है जोड़ा रजे वो 2 आइसोमर्स के विच डिसोसीएट होंदा, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट एंड 3 फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड। एक एल्डिहाइड है एक एसीटोन है सॉरी कीटोन है, दोनों दे विच डिसोसीएट होंदा ते दोनों ये फॉर्म्स आ जिहड़ियां इंटर कन्वर्टेबल होंदियां, रिवर्सिबल प्रोसैस होंदा। ये वाली फॉर्म इधर कन्वर्ट हो सकती है, ये वाली फॉर्म है जो इधर कन्वर्ट हो सकती है। फरदर जो प्रोसैस है रजे इस तो नैक्सट होंदा है NADH मॉलीक्यूल आ जिहड़ी उहदी रिडक्शन होंदी है H जो हैगा NAD दे नाल H मॉलीक्यूल NADH है जिहड़ा फॉर्म हो जाता विद रिडक्शन, ते 3 फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड आ जिहड़ा 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट दे विच कन्वर्ट हो जाता। एक होर फॉस्फेट आ जिहड़ी वो अगेन ग्लिसरैल्डिहाइड दे नाल आके अटैच हो जाती है। अगेन नैक्सट फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज एंजाइम आ जिहड़ा रजे वो एक्ट करता है ADP ATP दे विच चेंज हो जाता। हुण इत्थे 2 फॉस्फेट सी उन्हां दे विच एक फॉस्फेट रिलीज़ होके ATP मॉलीक्यूल फॉर्म करती है, ADP दे नाल ऐड होके डाई दे नाल ऐड होके ट्राईफॉस्फेट फॉर्म कर दिंदी है। नैक्सट 3 फॉस्फोग्लिसरेट फॉर्म हो गया रजे। 3 फॉस्फोग्लिसरेट तो फरदर पोजीशन चेंज होंदी है, रीअरेंजमेंट 2 फॉस्फोग्लिसरेट फॉर्म हो जाता, मीनस 3rd पोजीशन तो फॉस्फेट ग्रुप 2nd पोजीशन पर आ जाता। नैक्सट फॉस्फोग्लिसरेट 2 फॉस्फोग्लिसरेट तो फॉस्फोइनोल पायरूवेट फॉर्म होंदा रजे। फॉस्फोइनोल पायरूवेट ते अगेन जो हैगा आ काइनेज एंजाइम आ जिहड़ा वो एक्ट करदा। काइनेज एंजाइम दोबारा तो ADP डाईफॉस्फेट तो ट्राईफॉस्फेट एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट मॉलीक्यूल है जिहड़ा फॉर्म करदा एंड प्रोडक्ट आ जांदा रजे पायरूविक एसिड। दिस इज़ द स्कीमैटिक रिप्रजेंटेशन ऑफ ग्लाइकोलिसिस। नैक्सट स्टैप है रजे एनारोबिक रेस्पिरेशन द फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन दे विच की है रजे फर्मेंटेशन इज़ एनारोबिक रेस्पिरेशन, मीनस पायरूविक एसिड आ जिहड़ा फरदर लैक्टिक एसिड दे विच चेंज होंदा है, सॉरी इथेनॉल दे विच चेंज होंदा है। फर्मेंटेशन अकर्स इन बैक्टीरिया एंड मैनी अदर यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स लाइक यीस्ट। It is also occur in our striated muscles under strength or vigorous exercise। मसल सैल्स दे विच भी 10th दे विच बच्चे तुसीं पढ़िया होया कि लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हुंदा आ इन एनारोबिक रेस्पिरेशन। In fermentation there is incomplete oxidation of glucose under anaerobic conditions by a set of reactions where pyruvic acid is converted into carbon dioxide and ethanol in yeast or lactic acid in certain bacteria and human muscle cells. Only 7% of energy is released in fermentation. 2 molecules of ATP are formed in fermentation, and when the alcohol concentration reaches about 13%, the yeast cells become poisoned or and die। मीनस एथाइल अल्कोहल भी जो हैगी रजे 13% तक एथाइल कंसनट्रेशन है जी पूरे जो मटीरियल फॉर्म होया 13% एथाइल प्रेजेंट होंदा। जदों उस तो ज़्यादा अमाउंट होनी स्टार्ट हो जाती है यीस्ट सैल्स आ जिहड़े वर्क नहीं कर पाते, खत्म हो जाते हैं। ये है एनारोबिक रेस्पिरेशन। 2 एंड प्रोडक्ट्स ने एनारोबिक रेस्पिरेशन दे डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द ऑर्गेनिज्म। यीस्ट दे विच एंड प्रोडक्ट पायरूविक एसिड तो इथेनॉल फॉर्म होंदा है, ते बैक्टीरिया दे विच रजे लैक्टिक एसिड फॉर्म होंदा है। ह्यूमन मसल सैल्स दे विच भी लैक्टिक एसिड आ जिहड़ा फॉर्म होंदा है पायरूविक एसिड तो। नैक्सट इज़ एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन जिद्दां आपां पहलां पढ़िया रजे इहदे फरदर 2 स्टैप्स होंदे ने सिट्रिक एसिड साइकिल एंड इलैक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। Pyruvic acid is transported from cytoplasm into the mitochondria because aerobic respiration है जिहड़ी mitochondria दे विच हुंदी है। The key events in aerobic respiration are
complete oxidation of pyruvic acid by stepwise removal of all hydrogen atoms with the release of 3 molecules of carbon dioxide. The transfer of electrons removed as part of the hydrogen atoms to molecular oxygen along with the synthesis of ATP molecules. फर्स्ट ਦੇ ਵਿੱਚ रिमूवल हो रही है रजी, रिमूवल ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड सॉरी हाइड्रोजन की रिमूवल हो रही है, तो सैकेंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ इलैक्ट्रॉन्स ने ट्रांसफर होए आ उन्हां दी रिमूवल हो रही है, वो आ जाता इलैक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ਦੇ ਵਿੱਚ। फर्स्ट इज ट्राईकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। The first step takes place in mitochondrial matrix while the second step takes place in inner membrane of mitochondria. Electron transport particles called oxysomes. In mitochondria there are small components present, those are called oxysomes. In these oxysomes tricarboxylic acid or citric acid cycle is taken place. Pyruvic acid is oxidatively decarboxylated into 2 carbon acetate unit which joins a coenzyme A to form acetyl coenzyme. Following equation sums up the reaction. Pyruvic acid बच्चे जो ट्रांसफर होता इंटू माइटोकॉन्ड्रिया, पायरुविक एसिड कोएंजाइम के नाल एक्ट करता, कोएंजाइम ने एक्ट करके एसीटाइल कोएंजाइम फॉर्म करता विद द हेल्प ऑफ एंजाइम डिहाइड्रोजिनेज। एसीटाइल कोएंजाइम इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन ग्लाइकोलिसिस एंड सिट्रिक एसिड साइकिल, बिकॉज जिन्ना टाइम एसीटाइल कोएंजाइम नहीं फॉर्म होंदा सिट्रिक एसिड साइकिल स्टार्ट नहीं होंदा। एसीटाइल कोएंजाइम तो फरदर फॉर्म होंदा रजे सिट्रेट और सिट्रिक एसिड। फस्ट जिहड़ा हैगा इहदा प्रोडक्ट है सिट्रिक एसिड है रजे, इस करके इहनूं आपां सिट्रिक एसिड साइकिल है जो बोलते हैं। सिट्रेट फॉर्म होंदा रजे दे विच C6 लिखिया मीनस कार्बन का नंबर इत्थे 6 है। सिट्रिक एसिड चेंज होंदा इनटू आइसोसिट्रेट, फरदर NADP पॉजिटिव की रिडक्शन होंदी है रजे, तो कार्बन डाइऑक्साइड है जिहड़ी वो रिलीज़ होंदी है। अल्फा कीटो ग्लूटोरेट जो हैगा आ नैक्सट कंपाउंड फॉर्म होंदा, कोएंजाइम एक्ट कर रहा अगेन ये उपर NADP की रिडक्शन हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो रही है। इत्थे नैक्सट जिहड़ा कंपलैक्स फॉर्म होंदा सक्सीनाइल कोएंजाइम, वो फरदर जे जो हैगा वो एक GTP मॉलीक्यूल प्रोड्यूस होंदा है, ठीक है। एक इनऑर्गैनिक फॉस्फेट है जिहड़ी GDP दे नाल डाईफॉस्फेट दे नाल गुआनोसिन डाईफॉस्फेट दे नाल अटैच होकर गुआनोसिन ट्राईफॉस्फेट फॉर्म करती है, कोएंजाइम रिलीज़ हो जाता है, ठीक है। हुण इत्थे 4 कार्बनस वाला सक्सीनेट और सक्सीनिक एसिड है जिहड़ा फॉर्म हो जाता। नैक्सट FAD दोबारा जो हैगी रिडक्शन होंदी है रजे, FADH2 है जिहड़ा फॉर्म हो जाता विद रिडक्शन, तो इत्थे कंपलैक्स जो नैक्सट फॉर्म होंदा डैट इज़ फ्यूमारेट और फ्यूमेरिक एसिड। फ्यूमेरिक एसिड दे विच वाटर ऐड होके मैलेट और मैलिक एसिड है जिहड़ा फॉर्म करता, अगेन कार्बन का नंबर इत्थे 4 है। मैलिक एसिड दे रजे विद रिडक्शन ऑफ Na इंटू NaDH ऑक्सैलो एसिटिक एसिड फॉर्म होंदा और ऑक्सैलो एसीटेट फॉर्म होंदा विच फरदर एसीटाइल कोएंजाइम acts and changes into citric acid or citrate. This is tricarboxylic acid cycle. For today up to this only बच्चे, thank you, have a nice day.